Often, when a woman is tested for her grit, she comes out stronger and more empowered. It can be confidently said that if COVID-19 pandemic was a war, then women were the warriors who won the battle for us in many ways. Treating COVID 19 patients is the top priority of the medical workforce, even if it means keeping away from family and personal commitments. Today, our guest shares her experience on COVID impact on rural areas and the challenges she faced from past 1 year. Let's begin with another episode, A Day in Life of Doctors, a special episodic series on our unsung heroes. Hello, guys! Welcome to the new episode of Orators Club. We deeply dedicate this month to the unsung heroes of our country. Our guest for today holds an experience of 11 years as a homeopathic physician. She has run a clinic by herself before, and from the last 3 years, she's been appointed as a government medical officer in Nadbar district, Bharatpur. We'd like to welcome Dr. Meenakshi Naruka. Good evening, ma'am. I'm Mahi. Hi, Mahi. I'm Gaurika. Good evening, Gaurika. Now let's start with the questions. So, ma'am, that as we know that you deal with ILI patients, but most people don't really know about them. So, could you please elaborate with us about what are ILI patients? ILI is influenza-like illness. That means the person with cough, cold, or fever, or headache, and along with that body pain. These are called ILI-like symptoms. So there are many people who came to us these days for these symptoms. So we put it into ILI like this group, ILI group. So can they reach to a critical state? Actually, it may be simple influenza due to COVID-19. So basically, this is it is confirmed only after the test, RT-PCR or rapid antigen test or CRP. It is only confirmed after the COVID after the test. So, initially, how difficult it was for the doctors to adapt to the situation when the virus attacked suddenly during March 2020, and it was unknown to everyone. Like no one knew what was COVID-19. How did you manage? Actually, it was very difficult at that time, and it's difficult too this time also because actually being a doctor and being a person, because people are not ready to get it. They are not following the COVID guidelines and all, and basically initially it was hard to difficult to for us to detect. इंडिया में अपने जो है वो टेस्ट वगैरह स्टार्ट हुए एंड देन रैपिड एंटीजन टेस्ट किट वाज फॉर्म्ड एंड RT-PCR kit was manufactured. So initially it was very, very difficult because people were not ready to be what should I say, they were not following the guidelines, and initially it was it was only in abroad. Only there, it was a guideline to be quarantined at home or at any institution for 14 days if you are coming from a country where COVID is prevalent. But people were like कि हमें तो कुछ नहीं हुआ है and we are safe and we are all right and like that. And कुछ बात पे it was like कि गवर्नमेंट का था कि हम लोग नहीं उस तरीके से टेस्ट वगैरह कर पाए सारे जो भी फॉरेन, तो वो बहुत डिफिकल्ट फेज था. फिर धीरे धीरे पीपल गेट टू नो एंड एक्चुअली आई एम वर्किंग इन तहसील ना, so people and I'm in touch with villagers also. My duty was allotted in villages at that time during the first and in mobile OPD. So remote areas में basically where the people can't reach up to the premises of to give them better services at their home. So people were like कि go away and there is no disease like that actually, and corona मतलब basically कि corona कुछ नहीं है, you will spread the corona here.
we will not have any disease, we will not even मतलब having, we will not having, but you will spread it here, so go away, हम नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए बस. तो बहुत डिफिकल्ट था गौरिका. तो अब वो धीरे धीरे इजी होने लगा है या फिर अभी भी, बिकॉज थर्ड वेव भी आने ही वाली है ना? Yes. तो वो अब डिफिकल्ट वापस से हो चुका है या फिर अब थोड़ा ईज डाउन हो गया? Actually, if we compare in urban and rural areas, the people who live in urban areas are more sensitive, are more educated. They follow each and every guidelines which is given by the government. If you will see, you will look. मतलब आप लोग नहीं मिल रहे हो. We are not getting in touch with our relatives from many days. But here in rural area, अगर बात करें तो मतलब here are people, मतलब it is very difficult for us to convince them, and you will not believe, we are guided to take the rapid antigen test and RT-PCR in the remote areas. हम लोग we are doing mobile OPDs there, so people actually do not come when they get to know कि they are doing corona test. तो कि नो, वी आर ऑल राइट, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं और हमें कुछ भी नहीं हुआ है. इवन द ILI पेशेंट्स विच वी गेट द रिपोर्ट्स from the ANMs and the आशा कार्यकर्तास कि these are the name of the patients कि जिनको cough, cold या fever की problem है अभी लास्ट कुछ दिनों में. Even that patients do not come to us for the RT-PCR or RAT test. So it's very very difficult to convince them. तो वो बोलते हैं कि यहाँ आप हमारे गले में इंजेक्शन लगा दोगे, और वो उसने टेस्ट कराया था उसके बाद वो मर गया, एंड लाइक ऑल दैट. मतलब देयर आर वेरी स्टोरीज क्रिएटेड बाय देम. तो इट्स वेरी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस. ये बोलते हैं कि दवाई देनी है तो दो, अदरवाइज यू गो अवे, यू गो बैक. उन्हें बस कोरोना वर्ड से डर लगने लग गया है. बस उनको लग रहा है कि कोरोना से रिलेटेड कुछ भी तो मुझे कोरोना हो ही जाएगा अगर मैं टेस्ट करवाया. कोरोना हो ही जाए, यस, अगर टेस्ट से. हाँ, बेसिकली क्योंकि पीपल को ये डर है कोरोना से ज्यादा कि 14 डेज उनको बिल्कुल क्वारंटाइन होके रहना पड़ेगा, और उससे ज्यादा कि पता नहीं अगर हमें रखा तो ये लोग हमारे साथ में क्या करेंगे, हमें उठा के तो नहीं ले जाएंगे. जबकि हम लोग उनको हर तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके घर में सुविधा है, अगर इफ यू हैव सेपरेट रूम एंड अटैच लेट बाथ, तो आप लोग घर पे यू कैन स्टे एट योर होम ओनली. तो वहाँ पे आप अच्छे से डील भी कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी रहेंगे, तो यू विल गेट मेंटल सपोर्ट ऑल्सो. बट वो लोग ये सोचते हैं कि अगर कोरोना हो गया तो हम लोग, मतलब ये लोग ले जाएंगे, पता नहीं उसके बाद में हमारा क्या होगा बेसिकली. एंड दैट इज द मेन रीजन कि दिस टाइम इन द सेकेंड वेव कोरोना इज मोर प्रेवलेंट इन रूरल एरियाज देन द अर्बन. तो ज़्यादा टाइम के लिए वर्किंग आवर्स आपके पास ज़्यादा होते हैं, और कभी कभी होता है कि कंट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती है इस कंडीशन की, तो तब यूजुअली लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं. बट आप डॉक्टर्स को आपको पूरा मोटिवेटेड रहना पड़ता है, तो आप लोग वो चीज़ कैसे करते हैं? एक्चुअली वही है, हम लोग को वही काम तो रहना ही पड़ता है. ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उसके बाद में भी हम लोग को मतलब उनको डील करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है. पेशेंट को हम लोग मतलब मेडिसिन दे के डील करना, वो दैट इज डिफरेंट. बट उसको मेंटली इमोशनली कभी तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बीइंग काम एंड कूल. समटाइम्स होता है हमारे साथ में भी कि होता है कि हम लोग भी अपना लूज करने लगते हैं टेम्पो. इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स. बट वही है कि हमें पेशेंट को कैसे भी करके समझाना होता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप होते हैं कि सब तैयार ही नहीं है इस चीज को कैसे भी करके, ना वो मेडिसिन ले रहे हैं एंड ना वो टेस्ट के लिए तैयार हैं. उनको मतलब किस तरीके से भी हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बच्चों का, फैमिली का, सब हर तरीके से हम लोग उनको समझाते हैं. ये सिर्फ आपके लिए खतरनाक नहीं है, आपकी फैमिली, पूरी फैमिली के लिए, आपके अड़ोसियों के लिए, पड़ोसियों के लिए, ईच एंड एवरीवन. ठीक है, होती है प्रॉब्लम, बट वी आर मैनेजिंग दैट. मैम, आपके पास ऐसे कुछ पेशेंट्स आते होंगे जो लाइक हॉस्पिटलाइज है, उनको कोविड है, और कोविड नहीं भी होता है, तो लाइक उनका एक मेंटल जो हेल्थ होता है थोड़ा सा ऐसा होने लग जाता है. वो लोग को लगता है उनको कोविड है तो मतलब वो घर नहीं जा पाएंगे वापस, या ऐसा कुछ उनके दिमाग में काफी थॉट्स होता है. तो आप उनको कैसे चेयर अप करते हैं? एक्चुअली मेन थिंग इज दैट जो ज्यादातर जो पेशेंट्स जो बीमार होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जो पहुंचते हैं, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो मेंटली स्ट्रांग रहें. कोविड पॉजिटिव होना इज नॉट अ बिग डील. अभी आज के सेकेंड वेव के कंसेक्यूटिव थर्ड वेव भी आ रही है, तो उसके लिए हम लोगों को सबको तैयार रहना पड़ेगा. द मेन थिंग इज कि हमें पॉजिटिव मेंटली रहना पड़ेगा. आप कोविड पॉजिटिव आ गए, दैट इज वन थिंग, लेकिन उसके साथ में आपको मेंटली भी पॉजिटिव रहना है.
मुझे खुद को हुआ है, मैं इस फेज से गुजरी हूँ, मेरी पूरी फैमिली हम लोग इस फेज से गुजरे हैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, माय पेरेंट्स। एक फेज आता है, सबके साथ में होता है गौरिका। इट्स लाइक कि आप नहीं मिल पा रहे हो या आप ठीक हो गए नहीं हो गए, लेकिन दैट इज द पॉइंट जब आपको आपके फैमिली मेंबर्स कॉल, आप जिसको भी कॉल कर सकते हो जो आपको लगता है कि आपको मोटिवेट करेगा, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है कि उस पर अगर आपने नेगेटिविटी जरा सी भी आपके दिमाग में आई तो मे बी जरूरी नहीं है, क्योंकि कोविड केसेस में सिर्फ 15 to 20% केसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं, बाकी 80% तो वो मेडिसिन के थ्रू या फिर कुछ बहुत ही माइल्ड होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, तो वो विदाउट मेडिसिन भी अपने आप क्योर हो जाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% ऐसे केसेस है जो क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचते हैं और आगे डेथ होती है उनकी। तो आप उन 20% में नहीं हो, आप ये सोचो, ठीक है, क्योंकि वो रेशियो बहुत ही कम है। आई एम इन 80% पीपल हु विल आई विल रिकवर। तो मतलब बेसिक अपने माइंड में यही चीज होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर पॉजिटिव सोचोगे, इफ यू विल थिंक पॉजिटिव, योर बॉडी विल सीक्रेट, तो आपकी बॉडी में वैसे ही सीक्रेट होने सिक्रीशन होता है, आपकी जैसी सोच होती है वैसा ही बॉडी में होता है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो आपकी बॉडी भी वैसे ही हार्मोन्स बनाएगी, आपकी इम्यूनिटी वीकर होगी और भी ज्यादा। तो वो जो आपके बॉडी में वायरस अंदर गया है या और जो उसके साथ में फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो रहे हैं, तो वो सब और ज्यादा वर्सन हो जाएगी कंडीशन। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि अपना मेंटल जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी है, उसको बनाए रखें, उसको बूस्टअप करें। तो बोलना जो होता है इट्स वेरी इजी, है ना, लेकिन करना जिसके ऊपर कहते हैं कि गुजरती है, लेकिन आपको करना है, यू हैव टू डू दैट। आपके आसपास में ऐसी बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगी, बट यू हैव टू सर्च फॉर, मतलब एक होता है ना कि छोटा सा दिया भी जल रहा है तो उसकी जो ज्योति होती है, उसकी जो लॉ होती है, उससे भी आपको एनर्जी मिल रही है, आपको गर्माहट मिल रही है। यू हैव टू फॉलो दैट ओनली in this time, because all of us know this is very tough। को अपना हौसला बनाए रखना है। You have to be strong, you have to be strong for yourself, for your family, for your relatives। आप सबको आपकी जरूरत है। तो बेसिकली वही वाली चीजें, अगर आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, पॉजिटिव थॉट्स देखो, पॉजिटिव न्यूज देखो, अपना मोबाइल बिल्कुल एक तरफ कर दे, न्यूज चैनल्स बिल्कुल बंद कर दीजिए ऐसे टाइम पे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं कि आज इतने पॉजिटिव आ रहे, आज इतने नेगेटिव है। तो ये सब देख सुन के आदमी का जो दिमाग होता है, कोरोना के कोई न्यूज नहीं देखें आप इस समय पे। सिर्फ और सिर्फ वो अपना जो आपको अच्छा लगता है, आपको मूवीज देखें, आप अच्छी कॉमेडी मूवीज देखें, जिससे आपका इम्यूनिटी लेवल भी अच्छा होगा, आप हैप्पी फील करेंगे। तो जो आपको पसंद है आप वो काम कीजिए। आपको ऐसा लगता है जो 14 डेज का क्वारंटीन पीरियड है, दिस इज वेरी, आप ये सोचिए कि दिस इज वेरी, मतलब दिस इज अ गिफ्ट फॉर यू, कि आप इसमें वो काम करिए जो आप इतने टाइम से करना चाह रहे थे, लेकिन आपको अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं मिली, अगर आप वर्किंग है तो आपको अपने जॉब से फुर्सत नहीं मिली। बिल्कुल मस्ती कीजिए और साथ में अपना ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखो बस, लेकिन मेंटल लेवल अपना बिल्कुल हाई लो नहीं होने देना हमें किसी भी तरीके से। मैम, आपने अपने घर पे क्या मेजर्स यूज किए और मतलब आपने सब कुछ कैसे मैनेज किया घर पर, जो आपने बताया कि आप और आपकी फैमिली भी कोविड पॉजिटिव थी, तो आपने सब कैसे मैनेज किया? एक्चुअली इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मेरी डॉटर और फैमिली हुआ उनका थोड़ा सा बेटर हुई तो मैं वापस उसको अपने पेरेंट्स के पास में छोड़ के मैं वापस मैं ड्यूटी रिज्यूम की मैंने, लेकिन देन आई ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग कोविड सिम्टम्स, आई टेस्टेड एंड आई गॉट पॉजिटिव फॉर दैट। तो फिर हम लोग उसके बाद में हम लोग सेपरेट हो गए थे, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग वापस अपने घर गए और हम लोग सेपरेट थे अपनी फैमिली से। मेरी डॉटर है, मैंने उसको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास में ही रखा, मैं उसे अपने पास में नहीं लेके आई, क्योंकि जितना आप दूर रहेंगे, जितना आप करेंगे, मास्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर पॉजिटिव और नॉट। आउटसाइड तो यूज करना है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव है तो घर पे भी आपको यूज करना चाहिए अगर आपके साथ में और कोई रह रहा है। लेकिन क्योंकि बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों थे तो हम लोग सेपरेट रूम्स में थे, तो अगर ऐसा होता था तो हम लोग भी वो, अगर साथ में ऐसा टाइम नहीं हो पाता था कि मतलब अगर कभी होता था कि हम लोग ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी बोथ वर पॉजिटिव, तो ठीक है, इतना कोई इश्यू नहीं था हम लोगों के लिए कि हम दोनों की वजह से कोई तीसरा और है घर में जो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ठीक है, दैट वाज प्लस फॉर अस। तो बाकी वी वर यूजिंग सैनिटाइजर्स एवरी 1 hour और घर पे थे, तो फिर हम लोग क्योंकि
तो आप हैंड वॉश करो, जब भी आप पानी पी रहे हो, आप किसी भी चीज को टच कर रहे हो तो उससे पहले अपना हैंड वॉश करो, खाना खाने से पहले। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हम दोनों ही पॉजिटिव थे, तो मतलब इट वाज फीलिंग लाइक वीकनेस इतनी ज्यादा थी कि क्या करें। तो वी वर शेयरिंग आवर टास्क ऑल्सो। तो मतलब मैं खाना बनाती थी तो इन मतलब टुकड़ों टुकड़ों में काम होता था किचन, तो पूरा प्रॉपर मास्क वगैरह लगा के जाती थी किचन में भी। तो क्योंकि जिससे कि अगर क्योंकि बिकॉज जो वायरस है जिससे वो और ना हो, क्योंकि आई हैड वेरी सीवियर कॉफ, तो जिससे कॉफ के साथ में वो, क्योंकि हस्बैंड को माइल्ड सिम्टम्स थे, मुझे ज्यादा सीवियर सिम्टम्स थे, तो वो और सीवियरिटी की तरफ नहीं जाए, तो उसका मुझे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता था। तो मास्क यूज करती थी किचन में खाना बनाते टाइम। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जैसे कि कई फैमिलीज में अभी इस टाइम पे हो रहा है, तो हमें यही आता है कि खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं हम लोग हमारे लिए। तो आप लोग किचन में जा सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि उस टाइम पे किचन में सिर्फ आप ही हो, कोई और किचन में ना हो। तो और मास्क यूज करें और अच्छे से हैंड वॉश करें साबुन के साथ में, सोप यूज सोप, उसको अच्छे से 40 to 50 सेकेंड्स तक आप अच्छे से हैंड वॉश करें। उसके बाद में किचन में काम करें, और जो भी आप उसके बाद में सर्विंग का जहाँ तक है, तो हम लोग के साथ में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। अदरवाइज उसको आप कुक करके, और जो पॉजिटिव है तो वो छोड़ दें, उसे लेना है तो वो लोग द पीपल विल सर्व देमसेल्व्स, ठीक है। आपको सर्व नहीं करके देना है किसी को, क्या मतलब नॉर्मल डेज के जैसे कि हम लोग एक साथ बैठ के खाना खा लें या कर लें, तो वो लोग दे विल सर्व देमसेल्व्स। तो हमारे वाले केस में ये चीज नहीं थी, हम दोनों पॉजिटिव, तो ठीक है कि हम लोग खुद ले भी रहे थे और खा भी रहे थे। बस ठीक है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो वो मुझे बहुत मेंटली सपोर्ट करते थे बहुत ज्यादा, बिकॉज थोड़ा सा मेरा भी हो जाता था, क्योंकि बिकॉज वी ऑल वर सफरिंग साइमल्टेनियसली ना, आई एम ऑल आर बेटर नाउ। सही वैक्सीनेशन पे लोगों के काफी ओपिनियंस हैं, और मतलब उसके आफ्टर इफेक्ट्स पे भी काफी ओपिनियंस है, रूमर्स हैं बहुत, लेकिन रूमर्स के बीच में फैक्ट्स कहीं पे खो गए हैं, और लोगों को डिफिकल्टी आ रही है डिफरेंशिएट करने में कौन से रूमर है और क्या एक फैक्ट है। तो जैसे कि एक रूमर ये है कि अभी वैक्सीनेशन सेकेंड वेव से थर्ड वेव पे स्विच हो रहा है या जो भी है, तो आपको क्या लगता है, हमें अभी वैक्सीनेशन करवाना चाहिए? इज इट सेफ टू गेट वैक्सीनेटेड? बिल्कुल, वैक्सीनेशन इज मस्ट एट दिस टाइम, क्योंकि अभी जब तक पूरे 70 to 80% लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते हैं, तब तक इसके अगेंस्ट, जो वायरस के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी लोगों में, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट अभी थर्ड वेव जो आ रही है वो और भी ज्यादा सीवियर होगी, सेकंड वेव से भी ज्यादा सीवियर होने वाली है वो। तो आपने जैसे कि कंपेयर करो, आप मोर पीपल आर हैविंग क्रिटिकल सिम्टम्स, और थर्ड वेव जो होगी वो इससे भी ज्यादा होगी, और सेकंड वेव में भी जो देख रहे हैं हम लोग कि चाइल्ड आर आल्सो अफेक्टिंग, तो थर्ड वेव में भी सेम इज गोइंग टू हैपन। तो इसलिए आप अपने आप को, क्योंकि वैक्सीनेशन इज नॉट सुटेबल फॉर अंडर 18 टिल नाउ, तो जो 18 प्लस है तो उनको कम से कम अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लेना चाहिए, जिससे कि वो सेफ रहे। और मैम एक और चीज है कि ये भी है, एक रूमर टाइप है शायद, कि अभी वैक्सीनेशन जो लोग करवा रहे हैं उनकी इम्यूनिटी एकदम से डाउन हो जाती है, तो अगर वो जब उनकी इम्यूनिटी डाउन हो रही है, अगर तब उन्होंने कोविड कैच कर लिया, तो क्या फिर वो ज्यादा सीवियर हो सकता है? नहीं, सीवियरिटी की जहाँ तक बात है तो सीवियर तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर वैक्सीन आपने लगवाया है, वीक होगी, क्योंकि आपकी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं वायरस के अगेंस्ट, क्योंकि आपके बॉडी में वैक्सीन गया है, तो इसलिए यू हैव टू लुक आफ्टर यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको अपने और ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे कि आप इन्फेक्शन को कैच ना करो। अगर हो सके मतलब तो 1 month, मतलब बेसिकली मिनिमम 1 month तक तो आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वैक्सीन लगने के आफ्टर। तो उसके बाद में तो, क्योंकि उसके बाद अगर आपको लेकिन फिर भी हो रहा है, बहुत से लोग हैं जिनके कोविड वैक्सीन लगवाई उन्होंने, बट लेकिन उसके बाद में भी उन लोगों में मतलब कोविड अफेक्टेड है वो, तो आफ्टर 2 डोज भी है, ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनके दोनों डोजेस लग चुकी हैं फिर भी वो अफेक्ट हुए हैं। तो जो वैक्सीनेशन का जो वो है कि वो सीवियरिटी सिम्टम्स को कम ही कर रही है, वो बढ़ा नहीं रही है किसी भी तरीके से। अगर आपने दोनों डोज लिए हैं तो कुछ ही केसेस ऐसे होंगे कि जिनको बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे पहुंचे होंगे या जिनकी डेथ हुई होगी। वैक्सीन से इम्यूनिटी बूस्ट अप होगी, लेकिन उसको बूस्ट होने में टाइम लगेगा, तो तब तक आपको अपना ध्यान रखना है, नो डाउट।
तो मैम हम श्योर कि आपको बहुत टाइम तक अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता होगा, कितना डिफिकल्ट होता होगा आपके लिए, बिकॉज आप अपनी फैमिली से दूर है बहुत टाइम तक, तो फिर वो अफेक्ट तो आपको करता होगा। बिल्कुल माही, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दिस टाइम फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बेटर है, बट लास्ट ईयर इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट वाज टू फॉर माय डॉटर, बिकॉज वो छोटी है और इतना लंबा टाइम हम लोगों ने कभी इतना दूर एक दूसरे से नहीं रहे थे। तो उसके बाद में जो हम लोग मिले तो उसकी जो खुशी थी तो वो अलग ही थी। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक तो बहुत टफ टाइम था हमारे लिए भी, क्योंकि चारों तरफ से मतलब फर्स्ट टाइम एक तो ऐसी डिजीज बिल्कुल जो पैंडेमिक है ये आया था इंडिया में, और सेकंड टाइम कि आई वाज फार अवे फ्रॉम माय फैमिली, कि मेंटल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस टाइम, क्योंकि इनिशियली जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे जो लास्ट ईयर के, तो उस टाइम तो मतलब मॉर्निंग 8 टू इवनिंग 8 तक हमारी वर्किंग हो रही थी, कई बार 9 o'clock 9:30 भी ऑफिस में हो जा रहे थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, और कई बार कितनी ही नाइट्स थी जो स्लीपलेस मैंने निकाली हैं, क्योंकि नहीं होता। आप अपनी फैमिली से जब इतना दूर होते हो, फिर वर्क प्रेशर आपके ऊपर होता है, तो आप नहीं कर पाते। तो उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट था। वो अभी भी हर थोड़े दिनों में वो कह रही है मम्मा, अब क्योंकि हम लोग अभी भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे सब लोग ना, तो भी ऑलमोस्ट 1 मंथ से हम लोग मिले नहीं है, क्योंकि मैंने वापस से ड्यूटी रिज्यूम कर ली है। तो हम लोग मतलब मैं मिली नहीं हूँ, क्योंकि सेफ्टी फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू हम नेगेटिव तो हो गए, पर उसके बाद में भी मैंने कहा ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गए वापस में। तो कब से फिर से वही चल रहा है कि अब आप कब आओगे मम्मा, आप कब आओगे, आई एम मिसिंग यू सो मच। इन बिटवीन हमारी एनिवर्सरीज भी निकली, और पापा की मम्मा, उसको बहुत ज्यादा वो लग रहा था कि आप हमारे साथ भी नहीं हो मम्मा। तो फील होता है, बहुत बार फील होता है, बट ठीक है, हमारी ड्यूटी है तो ड्यूटी कम्स फर्स्ट। मैम एक चीज मेरे को पूछनी है आपसे कि लोगों को ना डबल मास्किंग के बारे में इतना पता नहीं है और वो फॉलो भी नहीं कर रहे, तो आप एक बार बता सके कि डबल मास्किंग क्या है और कैसे उसको यूज करना है। बिल्कुल, इस टाइम क्योंकि सेकेंड वेव बहुत ही ज्यादा सिवियरिटी के साथ आई है, और जो वायरस है वो भी डबल म्यूटेंट है, मतलब स्ट्राइक कर रहा है लोगों को, बहुत जल्दी कर रहा है। तो इसलिए दो डबल मास्किंग की हम लोग मतलब नीड है इस टाइम ना। तो आपको जरूरत है जब भी आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप यूज 2 मास्क, और वो जो दोनों मास्क हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। लाइक इफ यू आर यूजिंग N95 मास्क, then with it you can use a 3-layer mask or a cotton mask। तो वो दोनों डिफरेंट काइंड के होने चाहिए। सेम you will are not supposed to use 2 similar kind of mask। एक लास्ट क्वेश्चन है, एक मैसेज जो आप देना चाहते हो हमारे लिसनर्स को जो अभी सुन रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये है कि क्योंकि कोरोना चल रहा है तो आप कहीं मत जाइए, अपने घर बाहर मत निकलिए अनटिल अनलेस आपको बहुत ही अर्जेंट है, बहुत इमरजेंसी है। अर्बन एरियाज में सब कुछ ऑनलाइन मिल जा रहा है, तो अगर आपको जब तक आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये चीज़ मुझे ऑनलाइन नहीं अवेलेबल हो पा रही है, या तो क्योंकि आप सबसे मिल लेंगे, एक ये टाइम है, आप निकलने दीजिए ये जो फेज है इसको, उसके बाद में सब कुछ वैसे ही बैक टू नॉर्मल हो जाना है। लेकिन अगर हम लोग वापस से वही सब कुछ अपनाएंगे जैसे लास्ट टाइम हुआ था, तो ये हमारे ऊपर आने वाला है। तो फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने घर में रहिए, स्टे एट होम, तो आप और आपके फैमिली दोनों सेफ रहेंगे। और जब भी आपको सेकेंड थिंग कि जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो आप डबल मास्क कभी यूज करिए, यूज सैनिटाइजर whenever you are going outside। और वापस आप घर पे आ रहे हैं तो आप सैनिटाइजर यूज करें, हैंड वॉश करें। अगर घर आने के बाद में जितना हो सकता है तो सैनिटाइजर से मैं कहूँगी कि आप हैंड वॉश करें। और इफ यू कैन टेक अ बाथ, क्योंकि बिकॉज जो वायरस है वो अभी एट द प्रेजेंट बिल्कुल बहुत ज्यादा है, तो वो एयर में घूम रहा है, तो आप जितना फुली कवर्ड होके बाहर जाओ उतना ज्यादा आप सेफ साइड पे रहोगे। और तीसरी चीज, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। अगर आप बाहर जा रहे हैं जैसे किसी भी काम से, तो 2 गज की जो दूरी है 6 फीट की, तो वो आपको मेंटेन करना ज़रूरी है। तो तीसरी चीज़ ये है। और चौथी चीज़ ये है कि अगर फिर भी अगर आप एक बार को इन्फेक्टेड हो जाते हैं, अगर आप में थोड़ा सा भी आपको सिम्टम नज़र आ रहा है, सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, हाथ पैरों में दर्द, सर दर्द, बॉडी आपकी पूरी दर्द करिए थोड़ा सा भी, और या फिर इस टाइम जो है वो लूज मोशंस और वॉमिटिंग, ये सिम्टम्स भी आ रहा है, बच्चों में ज्यादा देखने को मिल रहा है।
तो अगर आपको कहीं से कहीं तक लगता है आपने ये सिम्टम है, सोर थ्रोट, आपको बोलने में परेशानी हो रही है गले में, उसी टाइम जैसे आपको फर्स्ट सिम्टम आ रहा है, आप गो फॉर अ टेस्ट, आप अपना टेस्ट करवाइए। अगर वो नेगेटिव आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप नॉर्मल जो भी मेडिकेशंस है इन्फ्लुएंजा के लिए आप वो लीजिए। लेकिन अगर पॉजिटिव आता है तो आप उसको कोरोना के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए जो भी है तो उनको आप लेते हुए होम आइसोलेट, या अगर आपको जैसी भी पर्सन की सिचुएशन है, कंडीशन है उस टाइम पे, अगर वो वर्स है तो अगर जरूरत है हॉस्पिटलाइज होने की तो वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपको होम आइसोलेशन में रहना है तो आप अपने उनको फॉलो करते हुए सारे सिम्टम्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमली उनको, आपके जैसे सिम्टम आते हैं, मेन थिंग यही है, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि अभी आज की तारीख में भी सबको यही लगता है कि ठीक है इट्स लाइक नॉर्मल फ्लू, तो हम लोग टेस्ट के लिए नहीं जाते जब तक कि सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर नहीं हो जाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं या फिर हम खुद ही सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप बीमार हैं तो सबसे पहले जाके अपना कोविड टेस्ट करवाइए, और अगर वो पॉजिटिव आता है आप अच्छे रिकॉग्नाइज डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन लिखवाइए उनसे, और बिना डॉक्टर की परमिशन के कोई और दवा मत खाइए। आपको जिस भी पैथी पे फेथ है, मैं फिर कहूंगी वो जरूरी नहीं है आप एलोपैथी लें, आप आयुर्वेदा, आप होम्योपैथी, आप नेचुरोपैथी, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है वो रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, फिजिशियन हो, वो आप अब जिस भी पैथी पे आपको फेथ है आप उसकी मेडिसिन लें और प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करें। आप लोग जल्दी से जल्दी सब लोग रिकवर होंगे जब ठीक होंगे। Yes, ma'am. Ma'am, we're done with the questions now. Thank you so much. It was a very informative session. Thank you. Thank you for your time, ma'am. Thank you. Okay, my pleasure, Vidya. Bye. Bye, ma'am. The way the doctors have been handling this pandemic situation, all my respects go towards them. Thank you so much, ma'am, for actively contributing in helping the patients. You are a true hero. Thank you all for listening to this episode. Tune in every Saturday, Sunday of this month at 5 p.m. for a new episode. Until then, goodbye. Stay home and stay safe, everyone.